तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वापस क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लोज टेस्ट का वापस से हमारा क्वेश्चन है और ये जो पैसेज है देख लेते हैं कितना बड़ा पैसेज है हमारा। चलिए 2 स्लाइड का पैसेज है पूरा और इसको करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम तरीका है जो पहला वाला पैसेज हमने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसको करने वाले हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद तीसरी बार हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा एक 30 to 40% भी अगर आप लोगों को समझ में आ गया, जो कि मुझे यकीन है, विश्वास है कि जब आप मेरे साथ रीडिंग करोगे तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। मुझे ये विश्वास है और मैं आपको समझाऊंगा भी। उसके बाद जो है सीधा हमको ब्लैंक को सॉल्व करना है। दोस्तों कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? आपके 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन है और 10 ब्लैंक्स हैं। ये जो भी ये जगह यहाँ पर दिया हुआ है इसके जगह पे हमको एक वर्ड फिलअप करना है और हर एक ऑप्शन में जो है आपके पास नहीं, हर एक वर्ड के लिए 4-4 ऑप्शंस दी हुई है। चलिए देर क्यों करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं रीडिंग करना शुरू करता हूँ। 2 बार रीडिंग करेंगे, एक बार स्लो करेंगे शुरू से लास्ट तक। दोस्तों आप लोग भी जो है मेरे साथ रीड करें, ठीक है। आप लोग मेरे साथ रीड करें और चलिए। Once people wore garlic around their necks to ward off disease. Today, most Americans would dash at the idea of wearing a necklace of garlic cloves to enhance their well-being. Dash, you might find a number of Americans willing to ingest capsules of pulverized garlic or other herbal supplements in the name of health. Complementary and alternative medicine, which includes a range of practices outside of conventional medicine such as herbs, homeopathy, massage therapy, yoga and acupuncture hold increasing dash for Americans. In fact, dash one estimate 42% of Americans have used alternative therapies. In all age groups, the use of unconventional health care practices has steadily dashed in the last 30 years and trend is likely to continue. Although people born before 1947 are the least likely to turn to these therapies, why have so many patients dashed to alternative therapies? ठीक है दोस्तों, एक बार स्लो पढ़ा अब एक बार इसको फास्ट पढ़ेंगे। Once people wore garlic around their necks to ward off disease. Today, most Americans would dash at the idea of wearing a necklace of garlic cloves to enhance their well-being. Dash, you might find a number of Americans willing to ingest capsules of pulverized garlic or other herbal supplements in the name of health. Complementary and alternative medicines, which include a range of practices outside conventional medicine such as herb, homeopathy, massage therapy, yoga and acupuncture, hold increasing dash for Americans. In fact, dash one estimate 42% of Americans have used alternative therapies. In all age groups, the use of unconventional healthcare practices has steadily dashed in the last 30 years and the trend is likely to continue. Although people born before 1947 are the least likely to turn to these therapies, why have so many patients to alternative therapies? ठीक है दोस्तों, ये वाला हमने स्लाइड का जो पार्ट है वो 2 बार पढ़ा। अब अगला पार्ट भी जो है हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ब्लैंक सॉल्व करेंगे। Many are frustrated by the time constraints of managed care and alienated by dash medicine's focus on technology. Others feel that a dash approach to healthcare better reflects their beliefs and values. Others seek therapies that relieve symptoms dash with chronic disease, symptoms that mainstream medicine cannot treat. Some alternative therapies have even crossed the line
dash mainstream medicine as scientific investigation has confirmed their safely and their safely and efficacy. तो यहाँ पे confirm their safety होगा, ठीक है। तो safety and efficacy, for example, physicians may currently prescribe acupuncture for pain management or to control the nausea associated with chemotherapy. Additionally, many US medical schools teach courses in alternative therapies and many health insurance companies offer some alternative medicine benefits, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दो हमने इसको चलिए एक बार अब जो है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो many are frustrated by the time constraint of managed care and alienated by dash medicines focused on technology. Others feel that a dash approach to healthcare better reflect their belief and values. Others seek therapies that relieve symptoms dash with chronic disease, symptoms that mainstream medicine cannot treat. Some alternative therapies have even crossed the line dash mainstream medicine as scientific investigation has confirmed their safety and efficacy. For example, physicians may currently prescribe acupuncture for pain management or to control the nausea associated with chemotherapy. Additionally, many US medical schools teach courses in alternative therapies and many health insurance companies offer some alternative medicine benefits. ठीक है, तो ये हमने जो है इसको 2 बार रीड किया और 2 बार रीड करने पर हमको एक रफ आइडिया जो है हमको लगा कि ये जो है किसके बारे में है। ये बेसिकली जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, कन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन या मेडिसिन या हेल्थ केयर के जो तरीके हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात हो रही है कि एक जो एलोपैथी होता है या फिर कन्वेंशनल तरीके, कन्वेंशनल का मतलब जो जनरल हेल्थ के जो ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर है, योगा है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अलग अलग थेरेपीज़ होती है उसके ऊपर बात हो रही है ना। तो जैसे यहाँ पर शुरुआत में जो है गार्लिक की बात हो रही है कि पहले के ज़माने में जो है लोग गार्लिक मतलब अदरक को अपने गले में उसकी माला बनाकर, अदरक और लौंग वगैरह की उसकी माला बनाकर अपने गले में लोग पहनते थे। तो अमेरिकन्स जो हैं इस चीज़ को पहनते थे, लेकिन अब जो अमेरिकन्स हैं वो इस बात पर हंसते हैं और यकीन नहीं करते हैं कि ऐसा भी कभी होता था। लेकिन वो भी कुछ ऐसे सिरप्स वगैरह भी, देखो ये ऐसे कैप्सूल्स या सिरप वो लोग लेते हैं जिसके अंदर गार्लिक होता है ना, तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, बट जो मेडिसिन वो लेते हैं उसके अंदर ये होता है पहले से, है ना। तो ये होम्योपैथी और ये मेडिसिन, ये सब चीज़ों की इसमें जो है बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इतना आइडिया लग गया वो भी काफ़ी है, ठीक, उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको समझेंगे जब एक एक हम लोग ब्लैंक को सॉल्व करने वाले ना, तब एक एक सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वंस पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, की एक समय था जब लोग जो है अपने गलों में क्या पहनते थे, अदरक पहनते थे, अदरक की माला बना के पहनते थे। और क्यों पहनते थे? टू वार्ड ऑफ डिजीज, जो भी बीमारियां हैं उनको दूर रखने के लिए वो ऐसा करते थे। आज जो है ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वियरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लोव टू एनहेंस देयर वेलबींग, की आज अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो अमेरिकन्स हैं वो क्या करेंगे भाई, आज बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हंसेंगे किस चीज़ पर, डैश इस आइडिया पे ऑफ वेयरिंग नेकलेस की। अगर आज हम किसी अमेरिकन्स को बोलें कि ये लो, आपको अगर बीमारियों से दूर रखना है, या किसी को भी कहें, अमेरिकन्स नहीं किसी को भी कहें कि ये लो, ये बीमारियों से आप दूर रहोगे, आप ये अदरक की माला पहन लो, लौंग इलायची अदरक की, तो क्या वो पहनेगा? वो क्या करेगा? हमारे ऊपर हंसेगा, हमारी मजाक बनाएगा कि ऐसा भी कभी होता है क्या। लेकिन एक समय पर ऐसा होता था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा,
वो वुड हंसने वाली बात है, कोई वर्ब आएगा, है ना, वर्ब वुड के बाद क्या होगा, वर्ब आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है ना, और कोई ना कोई नेगेटिव सेंस का, लाफेबल, हंसने, जो मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया कि हंसेगा या उसमें मजाक बनाएगा, ठीक है, या इस बात को यकीन नहीं करेगा, इस तरह का कोई शब्द आने वाला है। तो देखो क्या होगा, वुड स्कॉफ या डिसलाइक या अप्रिशिएट या एंजॉय। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने बताया कि नेगेटिव सेंस का वर्ड आएगा, तो एंजॉय तो वो करेगा नहीं भाई। आज का जो अमेरिकन व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपने गले में अदरक की माला पहन के उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, उसको वाहवाही नहीं करेगा, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सेंस का है, ये भी पॉजिटिव सेंस का है ना, तो वाहवाही तो नहीं करेगा, तो ये दोनों तो जो है क्या हो गए, कैंसल हो गए। अब स्कॉफ का क्या मतलब होता है, स्कॉफ का मतलब है रिडिक्यूल, रिडिक्यूल या मेक फन ऑफ या फिर लाफ, क्या करेगा, इसको लाफ करेगा, फन बनाएगा इस चीज का, ठीक है। और डिसलाइक करेगा, तो आज का जो अमेरिकन है वो क्या करेगा, डिसलाइक आएगा क्या, बताओ, आज का जो अमेरिकन है वो क्या करेगा, टुडे मोस्ट अमेरिकन वो डिसलाइक। अब डिसलाइक ऐट नहीं होता दोस्तों, डिसलाइक के बाद जो है ऐट प्रीपोजिशन नहीं आता है, डिसलाइक के बाद सीधा क्या होगा, द आइडिया ऑफ वेयरिंग, कि उसको डिसलाइक करेगा, लेकिन ऐट प्रीपोजिशन आ गया तो ये है तो आपका नेगेटिव, ये है तो आपका नेगेटिव सेंस, है ना, लेकिन यहाँ पे इसके बाद जो है ऐट वो नहीं आने वाला है, ऐट जो है वो नहीं आने वाला है, इसका मतलब स्कॉफ जो है उसके बाद ऐट आ सकता है, तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। स्कॉफ वर्ड मैंने बता दिया मीनिंग कि रिडिक्यूल या फिर मेक फन ऑफ या लाफ, तो ये फर्स्ट वाला स्कॉफ हमारा बिल्कुल राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो वो क्या करेगा, स्कॉफ करेगा कहाँ पे, इस आइडिया पर कि वो नेकलेस पहनने के, गार्लिक को या क्लॉ का जो नेकलेस है वो पहनने के आइडिया पर हंसेगा हमारे वेलबींग के लिए। आगे देखते हैं, ये यहाँ पर जो है कॉमा है, ठीक है, तो डैश यू माइट, है ना, डैश यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कुछ नेगेटिव सेंस का पूरा सेंटेंस है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि वो जो है अपने गले में अदरक की माला पहने, इस चीज़ को वो पसंद नहीं करेगा। अब एक्स्ट्रा आगे देखो, यू माइट फाइंड अ नंबर ऑफ अमेरिकन, तुम आप जो है कुछ ऐसे अमेरिकन को भी देख सकते हो जो विलिंग टू इंजेस्ट, जो कि क्या करते हैं, अपना एक कुछ कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं और उसके अंदर जो है पल्वराइज मतलब मिक्सअप करके वो जो गार्लिक है वो उसमें मिला होता है, या फिर दूसरे कोई हर्बल सप्लीमेंट मिले होते हैं हेल्थ के नाम पे जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मतलब वो एक माला तो नहीं पहनेगा, लेकिन जो अदरक है, अदरक की बनी हुई टैबलेट जरूर खाएगा। मतलब यहाँ पर एक कंजंक्शन आने वाला है और वो हालांकि का सेंस दे रहा है। कैसा सेंस दे रहा है, हालांकि के सेंस में, है ना। तो ये देखो हावेवर, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, या फिर जब मतलब एक तरह से एडिशन के लिए दे रहा है और एक राइट कंजंक्शन है ना। डिस्पाइट तो यहाँ पर नहीं होगा। मोरोवर मतलब ऐड करने की तो बात नहीं हो रही है, एंड मोरोवर जो है वो दोनों जो है ऐड करने के सेंस में आ रहे हैं, ठीक है। और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, तो यहाँ पे किसके बावजूद वो सेंस में नहीं आ रहा है। हाउएवर मतलब एक एडिशन, हाउएवर मतलब मोरओवर या इस तरीके से जो मीनिंग के हिसाब से जो है हाउएवर वर्ड बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। तो हाउएवर क्या होगा कि आप जो है कई सारे अमेरिकन्स को देखोगे कि वो कैप्सूल खाते हैं पल्वराइज गार्लिक का या और इस प्रकार के दूसरे हर्बल्स का, अपने हेल्थ के नाम पर वो कैप्सूल जरूर खाते हैं लेकिन माला नहीं पहनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विच इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस outside of conventional medicine such as herbs, homeopathy, massage therapy, yoga and acupuncture hold increasing dash for Americans। दोस्तों यहाँ पर देखो, एक होता है कन्वेंशनल मेडिसिन।
कन्वेंशनल मेडिसिन का मतलब होता है जो नॉर्मल जो मेडिसिन होती है, जिसको हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, जो हमको किसी भी केमिस्ट की शॉप पर मिल जाता है ना, दवाई की दुकान पर, जो भी जिसमें पैरासीटामोल होता है, जिसमें जो नॉर्मल जो केमिकल्स वाली जो मेडिसिन हैं वो सारी, तो उसको कहा जाता है कन्वेंशनल मेडिसिन, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही जनरल है मतलब। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव। ये जो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में क्या क्या आता है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये इन दोनों के हैं, है ना। उसमें हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, होम्योपैथी आप लोगों ने सुना होगा, मसाज वगैरह जो होती है, योगा है, एक्यूपंक्चर है, ये सब के सब जो है ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है ये कहलाते हैं। और कन्वेंशनल में एलोपैथिक पूरी होती है। अब यहाँ पर देखो, होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि लोग, अमेरिकन जो लोग हैं, उनकी जो रुचि है अब वो कन्वेंशनल मेडिसिन के बजाय इन दवाइयों में ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, कन्वेंशनल जो एलोपैथी है उसके बजाय अमेरिकन्स की जो रुचि है वो किस में ज़्यादा दिखाई दे रही है, कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव में ज़्यादा दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स, तो जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव सेंस का यहाँ पर वर्ड आ रहा है। देखते हैं क्या है, होल्ड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट होगा, है ना, हेल्थ क्या होगा, अपील होगा। देखो, होल्ड इंक्रीजिंग हेल्थ फॉर अमेरिकन्स, नहीं, होल्ड इंक्रीजिंग क्या, एक तरह से अट्रैक्शन, है ना, अमेरिकन्स के लिए एक तरह से क्या हो रहा है, अपील ज़्यादा कर रही है। ये जो नॉन कन्वेंशनल जो है, एक तरह से जो कॉम्प्लीमेंट्री या जो ऑल्टरनेट जो मेडिसिन है, वो एक तरह से अमेरिकन्स को ज़्यादा क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ज़्यादा अमेरिकन्स को अपील अपनी ओर खींच रही है। तो अपील कर रही है ना, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसमें जो है बी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अपील अमेरिकन्स। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये आजकल क्या हो रही है कि ये होल्ड इंक्रीजिंग अपील, है ना, अपील एक तरह से किसके लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अमेरिकन्स के लिए ज़्यादा अपील कर रही है। आगे देखते हैं, इनफैक्ट मतलब सच्चाई ये है कि डैश वन एस्टिमेट, तो के हिसाब से, ये यहाँ पर वही बात हो रहा है ना कि सच्चाई ये है कि एक एस्टीमेट के हिसाब से, एक अंदाज के हिसाब से, ठीक है, 42% ऑफ अमेरिकन जो है वो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज उन्होंने इस्तेमाल कर चुके हैं पहले से ही, है ना, एक एस्टिमेशन के हिसाब से। तो के हिसाब से, है ना, कौन सा कंजंक्शन आएगा, के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हमारा अकॉर्डिंग टू, के हिसाब से। अब यहाँ पर किसके हिसाब से बात हो रही है, एक एस्टीमेट, एक अंदाजे के हिसाब से, ठीक है ना, एक एस्टिमेशन लगाया और उसके हिसाब से जो है 42% जो अमेरिकन हैं उन्होंने ये ऑल्टरनेटिव जो थेरेपीज हैं ये पहले से इस्तेमाल वो कर चुके हैं। आगे देखते हैं, इन ऑल एज ग्रुप, सभी उम्र वालों में, द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल, जो नॉन कन्वेंशनल हेल्थ के जो है, जो एलोपैथी के अलावा जो हेल्थ प्रैक्टिस वगैरह है हैज स्टेडीली डैश इन द लास्ट 30 ईयर्स। तो मतलब सभी उम्र की गेज ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में यही बताया जा रहा है कि आजकल जो है लोग नॉन कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव या ये कॉम्प्लीमेंट्री जो तरीके हैं दवाई के, जो हेल्थ के जो ट्रीटमेंट्स के मेथड्स है उस पे लोग ज़्यादा उनका झुकाव हो रहा है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसके बारे में ही कोई बात बताई जा रही है कि सभी एज ग्रुप में जो है ये जो इसका जो इस्तेमाल है, अनकन्वेंशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिस का जो इस्तेमाल है वो स्टेडीली, मतलब लगातार क्या होता जा रहा है, जाहिर सी बात है बढ़ता जा रहा है ना। पिछले 30 सालों में जो है लगातार वो क्या जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में यहाँ पर बात हो रही है और इंक्रीज का कुछ है सेंस आ रहा है, देख लेते हैं। तो स्टेडीली, जाहिर सी बात है क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, स्टेडीली बढ़ा, है ना, इंक्रीज्ड हुआ, स्टेडीली क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बढ़ा पिछले 30 सालों में। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। और ये जो ट्रेंड है, ये जो चलन है, किस चीज का चलन, इन नॉन कन्वेंशनल जो तरीके हैं मेडिसिन के,
या जो ये कॉम्प्लीमेंट्री या जो ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन हैं, इनका जो ट्रेंड है, इनको इस्तेमाल करने का जो ट्रेंड है वो ये कंटिन्यू आगे भी होने वाला है। ऑल्दो, अब हालांकि है ना, अब ये कुछ नेगेटिव बात होगी, ऑल्दो पीपल बॉर्न, ऐसे लोग, ठीक है, जो पहले कब हुए थे, 1945 के पहले हुए थे, आर लीस्ट लाइकली टू टर्न टू दिस थेरेपी, ये लोग मुझे नहीं लगता कि इस थेरेपी पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है इसके बारे में जो लोगों को जो है ज़्यादा विश्वास नहीं होता होगा, ठीक है, वो एक कारण होगा, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, ठीक है, उनके पास वैसे ही बचने की उम्र कम होगी, ये टाइम ज़्यादा लेता है, या जो भी हो फैक्ट। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि ऐसे लोग जो 1945 से जो है पहले जिनका जन्म हुआ, ठीक है, मतलब जो आज बहुत 2020 अभी अगर चल रहा है तो बहुत बूढ़े हो गए होंगे, तो उन लोगों का जो जन्म हुआ है ना, उससे पहले जो हुआ, उनका क्या होगा कि वो बहुत कम इस थेरेपी को अपनाने वाले हैं। वाई हैव सो मेनी पेशेंट डैश टू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, तो ये एक बात हो गई। उसके बाद जो है वाई हैव, क्यों, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सो मेनी, इतने सारे जो पेशेंट्स हैं, डैश टू ऑल्टरनेटिव थेरेपी, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इतने सारे जो पेशेंट है वो इस ऑल्टरनेटिव जो थेरेपी है, जो होम्योपैथी है, योगा है, एक्यूपंक्चर है ना, एक्सरसाइज, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की तरफ उनका झुकाव क्यों हो रहा है ना, टर्न या इस तरह से झुकाव होने के सेंस में कोई ब्लैंक होगा हमारा, देखते हैं तो क्या होगा, डिसलाइक नहीं, डिसलाइक तो नहीं है ना, इतने सारे लोग जो है उसकी तरफ जो है क्यों हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है झुकाव होना है ना, टर्न होना, ये सही हो जाएगा कि इतने सारे जो लोग हैं उसको क्या किया उन्होंने, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो आप कि वाई हैव सो मेनी पीपल एक्सेप्टेड टू अल्टरनेटिव नहीं होगा, है ना, एक्सेप्टेड नहीं, टर्न टू, क्यों, क्योंकि टू जो है ना आपका ये टर्न के साथ ही आता है, टर्न के साथ ही टू आता है, एक्सेप्टेड के साथ नहीं होगा, ठीक है, टर्न के साथ, मतलब इंटरेस्टेड इन, इसका सीधा सा मतलब क्या है, इंटरेस्टेड इन। भाई इतने सारे लोग जो हैं इस ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में क्यों इंटरेस्टेड हुए, है ना, वो सेंस आ रहा है, तो इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा टर्न टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं। अब उसका रीजन है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इतने सारे लोग जो है इस ऑल्टरनेटिव थेरेपी में क्यों इंटरेस्टेड है, तो उसका आंसर कैसे आया, देखो, मेनी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम कांस्टेंट, नहीं उसके कंटिन्यूशन है, ठीक है, आंसर नहीं है, उसके आगे की बात है ना, मेनी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम कांस्टेंट ऑफ मैनेज्ड केयर एंड एलिनेटेड बाय डैश मेडिसिन्स फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। चलिए आंसर इसका रीजन भी हो सकता है और आगे की कुछ भी बात है हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए, परेशान हो गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत सारे लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गए कि एक तो ये जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो मेडिसिन है, या फिर आप बोल सकते हो कन्वेंशनल जो चलन में है, जो मेडिसिन है, कन्वेंशनल जो तरीका है, एलोपैथिक का जो इस्तेमाल है, एक तो इसमें ना बहुत टाइम लगता है, मैनेज केयर वगैरह करना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है, कांस्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो है मैनेज केयर का वो, और दूसरा एलिनेटेड बाय मेडिसिन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, कि वो बिल्कुल एक तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड मेडिसिन है, ठीक है, क्या है ये, एलिनेटेड बाय डैश मेडिसिन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, की ये एलिनेटेड बाय डैश मेडिसिन फोकस, तो क्या आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, तो एलिनेटेड बाय होम्योपैथिक या अल्टरनेटिव थेरेपेटिक। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई, लोग किससे फ्रस्ट्रेटेड हुए बताओ जरा, किससे फ्रस्ट्रेटेड हुए, लोग जो है इस कन्वेंशनल सोर्स से फ्रस्ट्रेटेड हुए। इसका जो चलन है होम्योपैथिक वगैरह का या नॉन कन्वेंशनल का, ये तो लोगों में इंटरेस्ट जागा है, पिछले 30 सालों से ये शुरू हुआ है, तो इन सब मेडिसिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या हो रहा है, डैश मेडिसिन फोकस, क्योंकि ये जो मेडिसिन है जिसकी ये बात यहाँ पर चल रही है, ये पूरी तरीके से किस पर फोकस्ड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, तकनीक के ऊपर फोकस है, और बहुत महंगी भी आती है। तो यहाँ पे जो पूरा डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है, इसका पूरा डिस्कशन जो है हम लोग होम्योपैथी के बारे में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव इसके बारे में या थेरेपेटिक इसके बारे में नहीं कर रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो है ये नॉन कन्वेंशनल है, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन या अनकन्वेंशनल सोर्स है ये, ठीक है, अनकन्वेंशनल सोर्स है ये।
और ये होता है कन्वेंशनल, जो इसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स मतलब कॉमन सोर्स, ठीक है, कॉमन सोर्स जो अभी चलन में है, जो एलोपैथिक और वो सब है ना, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर में आपका कन्वेंशनल सोर्स राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या होगा, एलिनेटेड बाय कन्वेंशनल मेडिसिन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी की। ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन है ये पूरी तरीके से किस पे फोकस्ड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अदर्स फील दैट, दूसरों को ये बात क्या होती है, फील होती है, क्या फील होती है, दैट अ डैश अप्रोच टू हेल्थ केयर बेटर रिफ्लेक्ट देयर बिलीव्स एंड फीलिंग। तो ज़्यादातर लोगों को, देखो इसके पहले क्या बात हो रही है, कितने सारे लोग जो है उधर है, अच्छा कुछ लोगों को ये फील होता है ना, दैट अ डैश अप्रोच। अब देखो यहाँ पे क्या है, अप्रोच है, ये क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, क्या आएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव आएगा। कि अ डैश अप्रोच किस पर, टू हेल्थ केयर, इस तरह का जो अप्रोच है, इस तरह अगर हम लोग हमारे हेल्थ पर ध्यान देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे बिलीफ और वैल्यूज भी उससे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई एक पॉजिटिव सेंस में हमको लग रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव। देखते हैं कि कैसा अप्रोच, एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है यहाँ पे ना, कि ऐसा अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, एक्यूपंक्चर वगैरह है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, या जो नेचुरल चीज़ें लेना, एक तरह से ये किस प्रकार का अप्रोच है, ये पॉजिटिव सेंस में ही यहाँ पर कोई ना कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से ये जो ट्रीटमेंट है ये होलसम ट्रीटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं, देखो एलोपैथिक जो है ना वो शॉर्टकट होता है एक तरह से अपने आप की बीमारियों को दूर करने का। एलोपैथिक जो है ना वो जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, जो आज की जो मेडिसिन है ना, उसका क्या जो असर होता है वो बाहरी होता है, ऊपरी असर होता है। लेकिन ये जो होम्योपैथिक वगैरह होता है, या जो हम लोग हर्ब्स वगैरह जो लेते हैं, हर्बल चीज़ें जो लेते हैं, ये जड़ों से किसी बीमारी को ख़त्म करती है, फिनिश करती है, मतलब शुरू से एकदम शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब एक तरह से कंप्लीट अप्रोच फॉर द हीलिंग, अपने आप को सुधार करने का या अपनी बीमारी को दूर करने का एक पूर्णतः एक उसका सोल्यूशन होता है। तो लोग इसी को तवज्जो देते हैं कि लोगों को ये मानना है कि उसका क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, मतलब होलसम अप्रोच होना चाहिए, है ना, होलसम अप्रोच होना चाहिए, या फिर टोटल अप्रोच होना चाहिए, है ना। टोटल या कंप्लीट के सेंस में यहाँ पे आ गया कि इसका क्या होगा, होलिस्टिक। देखो क्या आ रहा है मीनिंग, कि एक दूसरों को ये फील होता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच जो है किस चीज़ का, हेल्थ केयर के लिए, वो हमारे वैल्यूज़ को और हमारे बिलीव्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। और दूसरे जो लोग हैं अदर्स, वो किसकी हेल्प लेते हैं, थेरेपीज को। उनका मानना है कि थेरेपीज जो है वो क्या करती हैं, अदर्स सी थेरेपीज दैट रिलीव सिम्टम्स। कुछ लोग ऐसी थेरेपीज लेते हैं जो ऐसे जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, डैश विथ क्रोनिक डिजीज, ऐसे सिम्टम्स दूर करती है जो कि क्रोनिक डिजीज, ऐसे जो लंबे समय तक जो डिजीज रहता है उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, कि उस सिम्टम्स डैश विथ क्रोनिक डिजीज। तो देख लेते हैं, तो सिम्टम्स क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, हाँ, या फिर अनरिलेटेड, जॉइंट, या फिर टाइड। तो देखो वर्ब आने वाला है, और है ना, ऐसे सिम्टम्स जो कि जुड़े हुए हैं किससे, या संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे जो है थेरेपीज लेते हैं, और थेरेपी उनको निजात दिलवाती है, उनको जो है आराम मिलता है किससे, ऐसे लक्षणों से जो कि जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि प्राप्त हुए हैं किससे, क्रोनिक डिजीज से। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जो कि उससे संबंधित है, मतलब जुड़े हुए, संबंधित है, मतलब क्या सेंस में आ रहा है, एसोसिएटेड जो है वो राइट आ रहा है, कि दैट इज एसोसिएटेड, उसको बोल सकते हैं लिंक्ड या फिर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो इसका बिल्कुल एसोसिएटेड राइट हो जाएगा, ठीक है, कि जो कि जुड़ा हुआ है किससे, एसोसिएटेड है किससे, क्रोनिक डिजीज से। अब देखो सिम्टम्स दैट मेन स्ट्रीम मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट, और ये ऐसे लक्षण है जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन है, जो एलोपैथिक दवाई है, वो इस सिम्टम्स को जो है दूर
नहीं कर सकती, लेकिन ये जो एलोपैथिक जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव जो चीज़ें हैं, ये इन बीमारियों को दूर कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं सम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। अब देखो कौन कौन सी थेरेपीज हैं। हैव बीन क्रॉस्ड अ लाइन। ठीक है, कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है उन्होंने तो क्या किया कि लाइन क्रॉस की। क्रॉस द लाइन का मतलब है कि आगे चल के, मतलब एलोपैथिक जो काम नहीं कर पाती है वो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है ये वो काम कर सकती थी। ठीक है, तो उन्होंने काम किया। तो हैव इवन यहाँ तक कि उन्होंने क्रॉस द लाइन डैश मेनस्ट्रीम मेडिसिन, मतलब कुछ ऑल्टरनेटिव जो थेरेपीज़ हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनसे भी अच्छा काम किया। ठीक है, तो क्या होगा क्रॉस्ड अ लाइन, क्या होगा ऑन टू या अंडर। देखते हैं फिर से, कोई आपका प्रिपोजिशन आने वाला है। सम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है हैव इवन क्रॉस द लाइन डैश मेन स्ट्रीम मेडिसिन। तो क्या होगा कि लाइन अंडर मेन स्ट्रीम, उसके अंडर नहीं, ऑन टू नहीं होगा, इन मेन स्ट्रीम मेडिसिन नहीं होगा, इनटू मेन स्ट्रीम मेडिसिन क्या होने वाला है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो है सम ऑल्टरनेटिव थेरेपी की कुछ थेरेपीज जो है हैव इवन क्रॉस्ड द लाइन डैश मेन स्ट्रीम मेडिसिन। आगे देखते हैं एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हैज कंफर्म्ड देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। चलिए दोस्तों, तो इसका जो मीनिंग क्या है दोस्तों, इसका मीनिंग है कि कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो है उनको तो एक तरह से मेन स्ट्रीम, ठीक है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह माना गया है। मतलब उनको जो है ऑल्टरनेटिव तरीका नहीं माना गया है, उनको एकदम कंफर्म किया गया है कि ये जो थेरेपीज हैं इनको तो हमको जो है इन थेरेपीज को जो है हमको मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह एक ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ये बात जो है कंफर्म हो गई कि वो बहुत ही एफिशिएंट है और उनका जो यूज़ है वो बहुत ही सेफ है। जैसे आप लोगों ने फिजियोथेरेपी का नाम सुना होगा, फिजियो में जो थेरेपी कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम है। उसमें डॉक्टर जो है उसको बाकायदा सजेस्ट करते हैं कि ये जो बोन्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो है एक तरह से मेन स्ट्रीम थेरेपी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि कुछ जो थेरेपीज़ है वो एक तरह से इन मेन स्ट्रीम मेडिसिन का बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट बन गया है, बिल्कुल इसके अंदर का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिपोजिशन में क्या प्रिपोजिशन राइट लग रहा है, इनटू। ठीक है, कि कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपी जो है हैव इवन क्रॉस द लाइन इनटू द मेन स्ट्रीम मेडिसिन, है ना, मेन स्ट्रीम मेडिसिन की तरह उसके अंदर वो उसने जगह बना ली है। तो यहाँ पर जो है आपका इनटू प्रिपोजिशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल फिजिशियंस जो है मैं करंटली प्रिस्क्राइब कई बार, हाँ ये फिजिशियंस जो है आपको एक्यूपंचर के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, पेन मैनेजमेंट करने के लिए या फिर नोशिया, जो कुछ किसी प्रकार का किसी से डर, नोशिया जो होता है एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी, अगर हम लोग कीमोथेरेपी हमको नहीं करवाना है तो फिर एक्यूपंचर उसका एक सोल्यूशन है, उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना। एडिशनली मतलब इसके साथ साथ जो है बहुत सारे यूएस के जो मेडिकल स्कूल जो है वो भी ये सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के कोर्सेज पढ़ाते हैं। ठीक है, स्कूल में भी ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी ये वाले बेनिफिट्स देती हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बेनिफिट्स इंश्योरेंस के अंदर उसको इंक्लूड करती है। तो मतलब ये धीरे धीरे जो है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ वगैरह जो है, योगा, एक्यूपंचर और ये सारी चीज़ें जो है इसको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, इसको कॉमन मेडिसिन की तरह भी सजेस्ट किया जा रहा है, डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, हमने इसको समझा भी और इसके साथ जो है हमने इसके ब्लैंक्स भी सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों 34 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है इस अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग हमको बताना है। क्या लिखा हुआ है, टू ड्वेल इन एन आर्ग्यूमेंट विद अ फुलिश पर्सन इज लाइक बीटिंग द एयर। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल एक तरह से सेंटेंस को पढ़ के हमको काफ़ी कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि यदि हम किसी फुलिश या बेवकूफ़ इंसान से अगर हम आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहस करेंगे, तो वो किस तरह से है, वो एक तरह से बीटिंग द एयर, मतलब हवा को मारना या हवा में से हाथ घुमाने जैसा है। मतलब आप कितनी भी कोशिश करो कि आप वो काम
आपका सफल नहीं होने वाला है, मतलब फालतू के काम में उलझना, है ना, बेकार के काम में अपना समय बर्बाद करना, ये इस तरह से कोई मीनिंग आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट एफर्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एफर्ट, है ना। तो कोई इंपॉर्टेंट एफर्ट कब बोलेंगे, जब उसका कोई एक सकारात्मक परिणाम आ रहा है। तो यहाँ तो कोई परिणाम ही नहीं होगा, कितना भी आप करो कुछ भी यहाँ से हासिल होने वाला नहीं है। फ्रूटफुल का मतलब भी होता है कि इफेक्टिव या फिर इम्पॉर्टेंट, जिसमें कुछ ना कुछ परिणाम निकल कर आए, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में है, ये भी नहीं होने वाला है। यूजलेस टास्क बिल्कुल होगा, है ना, बेकार सा काम जो करना, भाई जाहिर सी बात है, बेवकूफ़ों को समझाना जो है वो एक तरह से हमारा समय बर्बाद करना है ना, उसमें हमको कुछ प्राप्त तो होने वाला है नहीं। ब्रीदिंग इन द एयर, ये तो कुछ और ही मीनिंग हो गया, है ना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है सी वाला हमारा। चलिए 35 वाला क्वेश्चन दोस्तों एक्टिव पैसिव का है, चलिए देख लेते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने आविष्कार किया, न्यूटन ने किया। न्यूटन क्या है, सब्जेक्ट है, ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये जो है ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव। देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसको करते समय ऑब्जेक्ट दोस्तों वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो पहले तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और सेकेंड फॉर्म वाला पास्ट टेंस वाला या तो वॉज या फिर वर, और उसके बाद जो है दोस्तों मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म बाय लगाकर हम लोग जो है सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना, ये हुआ, आया, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी से शुरुआत करना है, न्यूटन से शुरुआत नहीं होने वाली है। ठीक है, न्यूटन से शुरुआत नहीं होने वाली है, लॉ ऑफ ग्रेविटी से शुरुआत होगी। और लॉ ऑफ ग्रेविटी ये देखना है कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि प्लूरल ऑब्जेक्ट है। दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये हमारा नाउन है और ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर है मतलब वॉज आने वाला है। बस इतना सा पता चल जाए तो आपका आंसर वैसे ही हो जाएगा। भाई वॉज आने वाला है तो वॉज लगाओ, है ना, सीधा V2 नहीं लगाओगे। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पास्ट टेंस का लगेगा, उसके बाद वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगने वाला है, फिर बाय, और फिर आपका जो है सब्जेक्ट लगने वाला है। मतलब डी वाला जो आंसर है दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 36 वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है, इसको पढ़ लेते हैं। द टीचर सेड व्हाट अ सैड इंसिडेंट इट इज। ठीक है, एक तरह से सडन सरप्राइज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो टीचर जो है इन्होंने कहा कि देखो कितना सैड, कितना दुख भरा जो है इंसिडेंट ये है। दोस्तों ये एक तरह से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें दिया नहीं है बट ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन है, एक सडन सरप्राइज हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी याद रखना है, एक हाँ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये एक्सक्लेमेटरी क्योंकि मार्क नहीं लगा हुआ था, है ना, हाँ, लेकिन ये हमारा मार्क, ये क्वेश्चन का एरर है, इसमें मार्क लगा होगा। ठीक है, तो आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की दोस्तों पहचान है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक सडन सरप्राइज होता है, उसके अंदर एक सडन शॉक का भाव होता है ना, एकदम क्विक रिस्पॉन्स वाली बात होती है। तो इसको करने के लिए शुरुआत जो है हम देखते हैं कैसे। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों हम कैसे करते हैं कि हमारा जो क्या है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ये जो है इसमें हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड। क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लेम्ड होता है और उसके बाद जो है दैट लगाते हैं। ठीक है, और व्हाट अ सैड जो है ना, उसके बाद जो है शुरुआत हम कैसे करेंगे, इट, और टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा तो इट के साथ जो है क्या हो जाएगा, वॉस, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो इट इज का जो है वो प्लेन एक तरह से स्टेटमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ही वर्ड इसकी पहचान है, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम लगा दो,
है ना, और उसके बाद और कैसे एक्सप्लेन किया, देखो उसमें दुख पीड़ा भी बताई जा रही है, सैडनेस की बात हो रही है, मतलब उसमें सौरो जो शब्द है ना आपका वो पीड़ा शो करने के लिए, दुख दिखाने के लिए शो होता है। तो आप देखो एक्सक्लेम के बाद कैसे एक्सक्लेम किया, विद सौरो, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। एक्सक्लेम कई बार बहुत ज्यादा खुशी जब होती है ना तो भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हैं, है ना, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर सीन है, नजारा है, तो क्या करेंगे, एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ एक्साइटमेंट हो जाएगा, या एक्सक्लेम विथ जॉय हो जाएगा। तो अगर खुशी की बात है तो ये वर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जॉय, अगर खुशी की बात है, और दुख की बात है तो सौरो लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि सैड है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक्सक्लेम किसके साथ, दुख के साथ, की, है ना, दैट, और इट और इस के बदले क्या है, पास्ट टेंस लग जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो इट वॉज अ सैड इंसिडेंट, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम देखते हैं किस वाले पार्ट में एरर आगे आएगा। द मैनेजर along with his colleagues are preparing for the annual report to be submitted at the end of the financial year. Okay, so the manager along with his colleagues, ठीक है, are preparing, दोस्तों the managers along with his colleague are preparing for the annual report to be submitted at the end of final year। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एक रूल पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। रूल है आपका, देखो रूल मैं बताता हूँ, सबसे पहले नाउन वन, ठीक है, उसके बाद जो है अगर आपका आ गया along with, ठीक है, या together with, ठीक है, together with, या आ गया केवल विथ, या अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय, ठीक है, या एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो ये सारे अगर आपके क्या आ जाते हैं, कंजंक्शंस आ जाते हैं, ये सारे जो है आपके कंजंक्शंस आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में, अच्छा उसके बाद जो है आपका क्या है, नाउन टू है, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल फॉर्मेट नाउन वन, फिर ये सारे, फिर उसके बाद नाउन टू, और उसके बाद जो है आपका वर्ब आएगा, क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो दोस्तों वो वर्ब कैसे होगा, वो वर्ब हमारा होने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन, किसके हिसाब से वो वर्ब आपका होने वाला है, नाउन वन के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है ना, किसके हिसाब से होने वाला है, अकॉर्डिंग टू नाउन वन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आपका होने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब देखो सबसे पहले नाउन वन, उसके बाद अगर आपके पास आ गए along with, together with, accompanied by, as long as, इस तरह के कुछ कंजंक्शंस आ गए, और उसके बाद आपका नाउन टू। चलिए अब इसको, तो अगर ये हो जाता है तो वर्ब जो है वो किसके हिसाब से, नाउन वन के हिसाब से। इसका क्या मतलब है कि अगर नाउन वन हमारा सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका जो है सिंगुलर होने वाला है, और नाउन वन अगर क्या है, प्लूरल है, तो ये भी क्या होने वाला है, प्लूरल होने वाला है ना, ये भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द मैनेजर, ये आपका क्या है, नाउन वन है, ठीक है, और कैसा नाउन वन है, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर नाउन है ये आपका। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद, उसके बाद देखो हिज कलीग्स, एक से ज्यादा है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, और ये एक तरह से नाउन टू है। अब उसके बाद लगा हुआ है वर्ब, ठीक, कौन सा वर्ब, ये वाला, ये है आपका
प्लूरल वर्ब, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर वर्ब लगाना है किसके हिसाब से, फर्स्ट वाले के हिसाब से, नाउन वन के हिसाब से, और ये जो है हमारा सिंगुलर है, मैनेजर तो अकेला है, एक वचन है, मतलब यहाँ पर आर रॉन्ग हो जाएगा, इज यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो नाउन वन जो है हमारा सिंगुलर है, और ज़्यादातर 90% यही होता है कि फर्स्ट वाला हमारा सिंगुलर ही आता है, और जानबूझ के जो है सेकंड वाला नाउन आपको प्लूरल दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे आर सही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, आर रॉन्ग होता है। कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे नाउन्स दिए जाते हैं, अलॉन्ग विद एक बार लिख दिया, उसके बाद कलीग्स लिख दिया, हिज फ्रेंड्स लिख दिया, और भी एक्स्ट्रा नाउन, तो नाउन 2, नाउन 3, नाउन 4, हमको उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको बस ये देखना है कि हमारा फर्स्ट वाला अलॉन्ग विद के पहले वाला हमारा जो नाउन है वो कौन सा था, और उसके हिसाब से अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल रहेगा वर्ब, और अगर वो सिंगुलर हुआ तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ये हमको देखना है। तो आप देखो कि इस जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इस प्रिपेयरिंग होगा, आर प्रिपेयरिंग नहीं होने वाला है, मतलब एरर जो है वो सी वाले पार्ट में है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है।